سب سے پہلے اتنے کا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر میرا خیال ہے 52 سال ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پرابلم شروع کب سے ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ یہ اس کا رسولیوں کا مسئلہ تھا نا ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ سے ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کا رسولی کا آپریشن ہوا؟ آپریشن, رسولی کا آپریشن ہوا ہے. اس میں بلیڈنگ ہوتی تھی اس وقت؟ بلیڈنگ ہوتی تھی بہت زیادہ. بنیادی طور پہ بلیڈنگ کی وجہ سے آپ کو رسولی کا آپریشن جی ہوا؟ جی بلیڈنگ کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد یہ میرا مسئلہ جو ہے نا, یہ 2-3 دن کے بعد, 3 دن کے بعد انہوں نے ہاسپٹل سے چھٹی دی ہے, تو 3 دن گھر میں گزرے ہیں بس. پھر مجھے تکلیف ہے, واپس میں ہاسپٹل میں وہیں اسی میں گئی ہوں. انہوں نے بس وہ انجیکشن وغیرہ 3 دن کے لگوائے. بعد کیا ہوا؟ یورین کا کیا؟ یورین کا اس طرح ہوا ہے کہ رات کو میں سوئی ہوں, صبح اٹھی ہوں, جس طرح پانی نلکے کی طرح پانی کھول دینا اس طرح یورین آ گیا ہے مجھے اتنا سپیڈ میں. یعنی جب آپ کا آپریشن ہوا رسولی کے لیے, بچے دانی آپ کی جی, اس کے 3 دن بعد آپ کا یورین تو فری ہو گیا؟ فری ہو گیا, کپڑوں میں فریلی نکلنا شروع ہو گیا؟ اچھا خود سے بھی جاتی تھی واش روم یا سارے کا سارا کپڑوں میں لیک ہوتا تھا؟ کپڑوں میں جاتے جاتے بس سارا لیک ہو جاتا تھا. واش روم جاتی تھی بس تھوڑی دیر نکلتا تھا, پھر اسی طرح بس واپس آتی تھی, پھر اسی طرح بس سلسلہ چلتا رہتا تھا. اس سے پھر کیا پرابلم آپ نے مطلب میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا, اب مطلب لوگوں سے ملتی جلتی تھی, ہر وقت آپ کو اسمیل آتی ہوگی؟ اسمیل تو ظاہر ہے, ایسی بیماری تھی اس میں تو اسمیل ہے, لیکن میں نے اپنی طرف سے تو بہت احتیاط کی ہے. کپڑے جو تھے وہ روزانہ دھونے ہوتے تھے صبح کے ٹائم. پھر میں دن کو کہیں جانا ہوتا ہے یا کوئی مہمان آتا ہے, سمجھو آپ یہ کوئی آ رہا ہے, پھر وہ میں استعمال کر لیتی تھی پیڈ وغیرہ. لوگوں سے فریلی ملتی جلتی تھی جیسے پہلے تھی, ایسے ایسے لوگوں سے ملنا جلنا بس چھوڑ دیا تھا, بہت کم کر دیا تھا, کہیں جاتی آتی نہیں تھی, کم بہت لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا, بہت کم جاتی آتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ سوشلی آپ باقی لوگوں سے کٹ آف ہو گئے؟ کٹ آف ہو گئی تھی, بس اپنی پریشانی میں تھی. بیماری ایک ایسی تھی کہ جو بندہ ساتھ سے گزرے تو ظاہر گندی چیز کی اسمیل تو آتی ہے, پیشاب کی اسمیل تو ہوتی ہے, بچہ کا دے تو تب بھی کتنا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکا میرے سے. پھر میں وہ سارے بھی چھوٹ گیا تھا. پھر میں نے کسی ایک درس والی کو کال کیا, پھر میں نے اس سے پوچھا ہے, اس نے کہا آپ نماز نہ چھوڑیں, بس نماز پڑھتی رہی. پھر میں وہ بچوں والے جو پیمپر نہیں ہوتے وہ یوز کرتی رہی ہوں. پھر نماز بھی اپنے اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے میں کرتی رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ اس بیماری میں؟ اس بیماری میں تقریباً یہ اب روزے آنے والے ہیں, سال تو گزر گئے ہیں. اب روزے اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو روزہ ہے. تقریباً ایک سال کے قریب آپ نے یہ پریشانی برداشت کی ہے. 1 سال کے قریب. 1 سال میں ایسے ایسے ہی مسلسل تھا. پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں گئی ہوں, پھر سرکاری میں گئی ہوں, پھر آپ کے پاس پہنچی ہوں. جب آپ کے پاس پہنچی ہوں, آپ لوگ نے میرا پورا صحیح طریقے سے اس کے بعد آپ کا معائنہ کیا اور جب آپریشن ہو گیا, اب جب آپ کا یہ والا آپریشن ہو گیا, جی اس میں جب لیکیج بند ہو گیا, اب آپ کا کیا؟ ماشاءاللہ میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں. کافی میں آج تک بہتر ہو گئی ہوں. میں نے آپ کو آپ نے 8 دن مجھے ہاسپٹل میں رکھا ہے, وہاں تو میں کچھ نہیں کر سکی. گھر پہنچی ہوں, ہاتھ دھو کے میں نے فجر کی نماز کھڑے ہو کے پڑھی ہے. ماشاءاللہ اس بیماری سے جب جان چھوٹی ہے پہنچی ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, نلکی تو وہ ڈگی ہوئی تھی, لیکن میں نے کھڑے ہو کے نماز فجر کی پڑھی ہے, باقی نمازیں میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو مسئلہ ہے نا, ان لوگ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے جن کے بچے دانی ہوتے ہیں, سالے میں سراب ہو کے لیکیج ہوتی ہے, اور پیدائش کے عمل کے دوران بھی بات بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہے, اس میں بھی لیکیج ہوتی ہے. اچھا اگر کوئی اور اس طرح آپ کی طرح پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو کیا کرنا؟ اس کو میں پیغام مشورہ یہی دوں گی کہ آپ اپنا علاج جاری رکھیں, کہیں بھی نہ جائیں. میں نے تو مجھے کسی نے کہا ہومیوپیتھک کا کروا, میں نے وہ بھی نہیں کیا. ڈاکٹر نعمان کے پاس ہے, انہوں نے کہا مجھے آپ نے کہیں نہیں جانا, یہ اس طرح آپ نہیں ٹھیک ہوں گے.
हॉस्पिटल में जहाँ आपका डॉक्टर शहबाज और सब लोग इलाज कर रहे हैं, वो आपका इलाज अच्छा जा रहा है, आप इधर उधर कहीं ना जाए। बस मैंने जाना छोड़ दिया, आप पे एतमाद किया, आपने 10 दिन बाद बुलाया, 15 दिन बाद मैं आपके पास पहुंचा। अभी नाली निकले कितनी देर होगी? अब नाली निकले हुए 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्तों में कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। थोड़ी बहुत जलन वगैरह होगी? जलन होती है, वो जरा बस, जी हाँ वो हो रही है, लेकिन उसका मसला कोई नहीं है, बिल्कुल मैं रूटीन में वापस बिल्कुल ठीक हूँ। रात को माशाल्लाह सिर्फ 1-2 बार जाती हूँ, दिन में 2-3 घंटे मेरे गुजर जाते हैं, अच्छे गुजर जाते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपके हाथ में शिफा लिखे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे पे। बहुत शुक्रिया। मेरे से तो जिसने भी मशवरा किया मैंने उसको अच्छा ही देना है मशवरा कि आप अपना इलाज जारी रखें, डॉक्टरों के पास जाएं। वैसे उम्मीद पैदा है हकीम बहुत मैं घूमी हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीमारी का हल दवाइयों से नहीं है, ये जो सुराख हो जाता है ऑपरेशन से ठीक होता है। हाँ, वो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि लेदर की पता नहीं टुकड़े डालेंगे, क्या करेंगे, उस तरह आपका होगा तो तब आपकी लेकिन बंद होगी। अब मुझे नहीं बता आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये मुझे इतना अंदाजा था मुझे। ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें तो कोई बहुत सारे पाइप भी नहीं लगे। अच्छा, मतलब इसमें कोई ड्रेन भी नहीं डाला। अच्छा ठीक है, आपको बाहर कोई टांगे भी नजर नहीं आ रहे? नहीं हुए कुछ नहीं, शुक्र है अल्लाह आपको सेहत दे। उम्मीद है कि और भी कोई इसमें मुब्तला होगा तो उसका इंशाल्लाह ठीक है। हॉस्पिटल में जहाँ आपका डॉक्टर शहबाज और सब लोग इलाज कर रहे हैं, वो आपका इलाज अच्छा जा रहा है, आप इधर उधर कहीं ना जाए। बस मैंने जाना छोड़ दिया, आप पे एतमाद किया, आपने 10 दिन बाद बुलाया, 15 दिन बाद मैं आपके पास पहुंचा। अभी नाली निकले कितनी देर होगी? अब नाली निकले हुए 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्तों में कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। थोड़ी बहुत जलन वगैरह होगी? जलन होती है, वो जरा बस, जी हाँ वो हो रही है, लेकिन उसका मसला कोई नहीं है, बिल्कुल मैं रूटीन में वापस बिल्कुल ठीक हूँ। रात को माशाल्लाह सिर्फ 1-2 बार जाती हूँ, दिन में 2-3 घंटे मेरे गुजर जाते हैं, अच्छे गुजर जाते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपके हाथ में शिफा लिखे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे पे। बहुत शुक्रिया। मेरे से तो जिसने भी मशवरा किया मैंने उसको अच्छा ही देना है मशवरा कि आप अपना इलाज जारी रखें, डॉक्टरों के पास जाएं। वैसे उम्मीद पैदा है हकीम बहुत मैं घूमी हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीमारी का हल दवाइयों से नहीं है, ये जो सुराख हो जाता है ऑपरेशन से ठीक होता है। हाँ, वो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि लेदर की पता नहीं टुकड़े डालेंगे, क्या करेंगे, उस तरह आपका होगा तो तब आपकी लेकिन बंद होगी। अब मुझे नहीं बता आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये मुझे इतना अंदाजा था मुझे। ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें तो कोई बहुत सारे पाइप भी नहीं लगे। अच्छा, मतलब इसमें कोई ड्रेन भी नहीं डाला। अच्छा ठीक है, आपको बाहर कोई टांगे भी नजर नहीं आ रहे? नहीं हुए कुछ नहीं, शुक्र है अल्लाह आपको सेहत दे। उम्मीद है कि और भी कोई इसमें मुब्तला होगा तो उसका इंशाल्लाह ठीक है। सबसे पहले इतने का आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरा ख्याल है 52 साल है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपको प्रॉब्लम शुरू कब से हुआ था, क्या हुआ था? ये इसका रसोलियों का मसला था ना डॉक्टर साहब, उसकी वजह से हुआ है। सबसे पहले आपका रसोली का ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन, रसोली का ऑपरेशन हुआ है। ब्लीडिंग होती थी उस वक्त? ब्लीडिंग होती थी बहुत ज्यादा। बुनियादी तौर पे ब्लीडिंग की वजह से आपको रसोली का ऑपरेशन? जी ब्लीडिंग की वजह से हुआ। उसके बाद ये मेरा मसला जो है ना, ये 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी दी है, तो 3 दिन घर में गुजरे हैं बस। फिर मुझे तकलीफ है, वापस मैं हॉस्पिटल में वहीं उसी में गई हूँ, उन्होंने बस वो इंजेक्शन वगैरह लगवाए। 3 दिन के बाद क्या हुआ? यूरिन का इस तरह हुआ है कि रात को मैं सोई हूँ, सुबह उठी हूँ, जिस तरह पानी नलके की तरह पानी खोल देना, इस तरह यूरिन आ गया मुझे इतना स्पीड में। यानी जब आपका ऑपरेशन हुआ रसोली के लिए बच्चेदानी आपकी, उसके 3 दिन बाद आपका यूरिन तो फ्री हो गया? फ्री हो गया, कपड़ों में फ्रीली निकलना शुरू हो गया। अच्छा, खुद से भी जाती थी वॉशरूम या सारे का सारा कपड़ों में लीक होता था? कपड़ों में जाते जाते बस सारा लीक हो जाता था। वॉशरूम जाती थी, बस थोड़ी देर निकलता था, फिर उसी तरह बस वापस आती थी, फिर उसी तरह बस सिलसिला चलता रहता था। उससे फिर क्या प्रॉब्लम आपने मतलब मेरा पूछने का मतलब है कि आप लोगों से मिलना जुलना, अब मतलब लोगों से मिलती जुलती थी, हर वक्त आपको स्मेल आती होगी,
स्मेल क्या तो जाहिर है ऐसी बीमारी थी, इसमें तो स्मेल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो बहुत एहतियात की है। कपड़े जो थे वो रोजाना धोने होते थे सुबह के टाइम, फिर मैं दिन को कहीं जाना होता है या कोई मेहमान आता है, समझो अब ये कोई आ रहा है, फिर वो मैं इस्तेमाल कर लेती थी पैड वगैरह। लोगों से फ्रीली मिलती जुलती थी जैसे पहले थी, या ऐसे लोगों से मिलना जुलना बस छोड़ दिया था, बहुत कम कर दिया था, कहीं जाती आती नहीं थी, कम बहुत हो लोगों से गया मिलना था, जुलना छोड़ दिया था? छोड़ दिया था, बहुत कम जाती आती थी। इसका मतलब है कि सोशली आप बाकी लोगों से कट ऑफ हो गए? कटअप हो गई थी, बस अपनी परेशानी में थी। बीमारी एक ऐसी थी कि जो बंदा साथ से गुजरे तो जाहिर है गंदी चीज की स्मेल तो आती है, और पेशाब की स्मेल तो होती है, बच्चा कर दे तो तब भी कितना होता बाकी है। नमाज वगैरह कुछ भी नहीं हो सका मेरे से, फिर मैं वो सारे भी छूट गए, नमाज छूट गया था। फिर मैंने किसी एक दर्स वाली को कॉल किया, फिर मैंने उससे पूछा है, उसने कहा आप नमाज मत छोड़ें, बस नमाज पढ़ती रही। फिर मैं वो बच्चों वाले जो पेम्पर नहीं होते वो यूज करती रही हूँ, फिर नमाज भी अपनी अल्लाह ताला कबूल करे या न करे मैं करती रही हूँ। डॉक्टर साहब कितना अर्सा इस बीमारी में? इस बीमारी में मैं तकरीबन ये अब रोजे आने वाले हैं, साल तो गुजर गए हैं, अब रोजे अगले महीने की 28 तारीख को रोजा है। ये तकरीबन एक साल के करीब आपने ये परेशानी बर्दाश्त की है, 1 साल के और करीब। 1 साल में ऐसे ही मुसलसल ऐसे ही मुसलसल था, प्राइवेट हॉस्पिटलों में गई हूँ, फिर सरकारी में गई हूँ, फिर आपके पास पहुंची हूँ। जब आपके पास पहुंची हूँ, आप लोगों ने मेरा पूरा सही तरीके से अच्छा, उसके बाद आपको हमने मुआयना किया और जब ऑपरेशन हो गया, अब जब आपका ये वाला ऑपरेशन हो गया, जी जी, इसमें जब लीकेज बंद हो गया, अब आपका क्या? माशाल्लाह मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, काफी मैं आज तक बेहतर हो गई हूँ। मैंने आपको हॉस्पिटल, आपने 8 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा है, वहां तो मैं कुछ नहीं कर सकी। घर पहुंची हूँ हाथ धो के, मैंने फजर की नमाज खड़े होके पढ़ी है माशाल्लाह। इस बीमारी से जब जान छूटी है, पहुंची हूँ, आपने कहा कि आपका कोई मसला नहीं है, मैंने कहा नहीं, नलकी तो वो लगी हुई थी, लेकिन मैंने खड़े होकर नमाज फजर की पढ़ी है, बाकी नमाज में बैठ के पढ़ती हूँ। आपको पता है ये जो मसला है ना, उन लोग ख्वातीन के साथ भी होता है जिनके बच्चेदानी होती है, सामने में सुराख होती है, और पैदाइश के अमल के दौरान भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें भी लीजिए। अच्छा, अगर कोई और इस तरह आपकी तरह परेशानी में मुबतला हो तो क्या करें? उसको मैं पैगाम मशवरा यही दूंगी कि आप अपना इलाज जारी रखें, कहीं भी ना जाए। मैंने तो, मुझे किसी ने कहा होम्योपैथिक का करवाओ, मैंने वो भी नहीं किया। डॉक्टर नुमान के पास है, उन्होंने कहा अम्मा जी आपने कहीं नहीं जाना,